ड्रिल पाइप फेलियर बहुत कॉमन और कह सकते हैं बड़ी डेंजरस सी ड्रिलिंग प्रॉब्लम है। एंड ये किस वजह से हो सकती है? एक्सेसिव टॉर्क की वजह से हो सकती है, लाइक कि जो आप ऊपर से उसको ड्रिल स्ट्रिंग को मूव कर रहे हैं और मे बी दैट ड्रिल स्ट्रिंग हैज बीन स्टक एट सम प्लेस और इट डजंट मूव्स एज द ड्रिल स्ट्रिंग मूव्स एंड देयर कैन बी जो आपका सब सरफेस असेंबली है, जो सरफेस असेंबली है उसके दरमियान जो है कोऑर्डिनेशन, it doesn't matches the coordination, also the parting, maybe the breakdown of the drill pipe can also happen due to excessive tension, like जैसे टेंसाइल स्ट्रेस होता है, जैसे आप दो ब्लॉक्स को, जैसे हम नॉर्मल फॉल्ट्स बनाते हैं तो दो ब्लॉक्स को आप डिफरेंट डायरेक्शंस में आप मूव करते हैं, तो एक्सेसिव टेंशन से बर्स्ट भी कर सकता है, पाइप फट सकता है, कोलैप्स कर सकता है इंटरनल प्रेशर से, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट और मे बी वी कैन हैव अ फटीग इज एक्चुअली माइक्रो फ्रैक्चर्स जो हैं वो ड्रिल स्टिंग में अगर ग्रो कर जाते हैं और फॉर्म कर जाते हैं ड्यू टू some change in the composition of the drilling mud, or maybe some corrosive material that comes in the drilling fluid. They can be result of that, or sometime it can be due to the some mechanical problems की वजह से जो आपकी ड्रिल स्टिंग है उसमें रस्टिंग होने के बाद वो फ्रैक कर गई या माइक्रो फ्रैक्चर्स ग्रो कर गए हैं, जिसको हम नॉर्मली फटीग कहते हैं। ओके, कुछ टाइप्स यहाँ पे लिखी हुई हैं। ट्विस्ट ऑफ है, पार्टिंग है, कोलैप्स और बर्स्ट एंड फटीग। ट्विस्ट ऑफ बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि जो आपका शेयरिंग स्ट्रेस है कास्ट बाय हाइट टॉर्क एक्सीड्स द पाइप मटेरियल अल्टीमेट शेयर स्ट्रेस, कि जब आप उसको मूव करवा रहे हैं ड्यूरिंग द ड्रिलिंग प्रोग्रेस, sometime the talks, the moment that you are giving it is excessive and the pipe cannot move as fast as that particular drilling, or because of the depth, क्योंकि जब आप drill कर रहे हैं, maybe you are drilling a slant hole or maybe you are drilling a vertical hole, and we are talking about 3000 meters, so you can see there can be a problem of twist of parting basically ये है कि जब आपका pipe when you are drilling it is stuck in some place in the well, and you want to move it, and as a result the pipe doesn't move with the upper part, and maybe the tensile stress exceeds the ultimate tensile stress of pipe. जब ये पाइप्स डिज़ाइन किए जाते हैं ड्रिल पाइप, तो इनके ऊपर मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट ऑलरेडी किए जाते हैं, लाइक ट्विस्ट ऑफ, पार्टिंग, but in subsurface condition the things are very different, and in natural environment you can expect anything to happen. So parting can happen, collapse and burst, it's not a very common problem but can happen under extreme conditions। अगर आपका जो mud weight है वो आपने बहुत ज़्यादा हैवी कर लिया है और आपका जो आपने लॉस ऑफ सर्कुलेशन को कंट्रोल करने के लिए उसको बहुत हैवी कर लिया, और उसकी वजह से जो आपका पाइप है वो उसको सस्टेन नहीं कर सका उस हैवी ड्रिलिंग फ्लूइड को at greater depths, and it can collapse or burst। Fatigue is basically a dynamic phenomena, और इसमें क्या होता है कि you will have the formation of micro cracks and propagation of macro cracks as a result of repeated application of stresses। Normally if you read the theory of fracturing in Davis, the book of structural geology, you will see that even if you have a small crack in your car, अगर आप कार की बॉडी के अंदर क्रैक देखते हैं तो as the car moves that crack actually propagates and it start moving and until it frack the complete structure। Similarly in fatigue we also have the growth of small fractures, microscopic fractures that comes into hand size, like macro fractures that you can see,
and it is a very costly problem also when you are drilling the wells for geothermal drilling, that is for the hot water. You want to use that hot water for the benefit for heating and other purposes. पाइप फेलियर प्रिवेंशन कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं इसको? इसको हम टोटली तो नहीं कर सकते as it is written, and we can minimize it. How we can minimize it? By selecting the better quality of pipes. The first thing is that, and also we can induce and we can use such fluids that are non-corrosive, that can help in drilling and doesn't have the corrosion effect. And similarly, we can also control the dogleg. Dogleg is actually when your drill string is like sticks in some place, and then it doesn't comes vertical, but it changes into something like we call it as a dog leg. And as the drilling vibrates, and then it can create fatigue fractures, and also sometimes the tensile stresses, and also sometimes we have certain gases and the presence of like H2S. And again, the thing is proper inspection, proper like maintenance of the well can increase the life of your drill string. And if there is poor management, then the chances are there that you can have these type of pipe failures. Borehole instability, as you know, sometimes some undesirable conditions can happen, and the structural integrity of your borehole can happen. Sometimes the fluid circulation can cause erosion, and there can be some chemical interaction between the borehole fluid and the formation. It can also damage the borehole, and also the mechanical failures that can be caused by in situ stresses. Sometimes the area that you are drilling is already like structurally complex, and it has stresses in different directions that can also fail your and also like make your borehole unstable. And the types and associated problems. There are 4 different types of borehole instabilities. Hole closure, narrowing भी हो सकती है उसमें, hole enlargement, washouts हैं, fracturing है, collapse है. तो ये कुछ टाइप्स हैं जो बोरहोल इंस्टेबिलिटी के साथ एसोसिएटेड हैं, जिसमें क्लोजर हो सकता है, या हो सकता है कि जो आपका बोरहोल है वो नैरो हो जाए जहाँ से आपकी ड्रिल स्ट्रिंग ने गुजरना है, या maybe it can come enlarged due to excessive washouts, or maybe fracturing that can happen, and the drilling fluid that you have can go into the formation, or maybe collapse can happen. Here we can see some of the images, and you can see there is enlargement of the borehole, and in this place, and maybe we have the thinning of the borehole, maybe due to the creation of thick mud cake. And now these problems can exist. Shale instability. Shale is a very problematic formation to drill, and depending on the types of clays, if the clays are expanding, then the sloughing and hole enlargement or anything can happen. And always it is very difficult to clean the mud in the shale areas. Sometimes it can form mud rings. जो pipe होता है उसके around it can form rings and blockages. It also can stop the fluid circulation, and it will be difficult for you once you want to change the pipe. जब आप pipe change करना चाहते हैं तो उसमें भी problem होगी. इसके अलावा जो आपका drilling fluid की circulation है ये उसको भी block कर देगा. So shale instability, normally it is very dangerous. Sometimes it can also increase the risk of blowout. Sometimes it can also like when the fluid circulation stops, so your pumps will be under pressure, and sometimes you will have more problem in terms of the subsurface formations can have extreme pressures. And similarly, sometimes the torque can increase, and overall
once you want to drill further and you want to turn your drill string, but the drill string isn't moving and it is stuck, and hence these are some of the problems. How we can solve the instability issue? We cannot actually resolve it 100% because restoring the chemical, physical, in situ condition of the rock is impossible. The preventions include, of course, the mud weight is the most important part of the solutions, and if you have proper mud weight, that's why geology here comes for your rescue. If you know the geology very well, and then you, based on that geology, you define proper mud weight and its maintenance. And similarly, we have proper hydraulics to control the equivalent circulating density. It means that you know when to start circulation, so that the drilling mud, it remains in circulation and doesn't settle. Similarly, proper hole trajectory selection, like once you want to drill the well, you know the exact location where you want to drill, and the trajectory doesn't passes through the problematic zones like faulting, or maybe some, if you want to avoid some shale high pressure zones and certain areas. So it means proper uh, planning, and similarly, you don't leave the hole open for longer time, and once you finish the drilling, you better go for cementing, and you better go for the casing. And similarly, you can also use the offset well. Like if you have a well that is 2 kilometers away, always try to study offset wells whenever you are at the oil field. Remember, during drilling, always study the data. जो ड्रिलिंग रिपोर्ट्स होंगी आपकी, जो वेल नियर बाय है, उनको लाजमी पढ़ें, और कोलैबोरेशन करें जो आपकी कंपनी के साथ है, हेड ऑफिस है, उनमें से लोगों के साथ मिलें, बात करें, ड्रिलर के साथ, पेट्रोलियम इंजीनियर के साथ, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द एरिया, द डायनामिक्स ऑफ द एरिया, किस डेप्थ पर प्रॉब्लम है, कौन सा टॉप किस डेप्थ पर आता है। तो ये तमाम चीज़ें, जस्ट ट्राई टू कम्युनिकेट एंड मेंटेन ए वेरी गुड रिलेशनशिप विद योर ड्रिलर, maintain a very good relationship with your petroleum engineer, and always monitor the trend. If there is any change, inform your superior. आप अपने senior geologist, your senior driller है, whenever you see any problem, whenever you see any trend, always inform those guys. Excuse me, because these guys are there to help you, and these guys are there to guide you, and always learn from their experience. And वो एक सेकेंडरी ऑयल रिकवरी और प्राइमरी ऑयल रिकवरी, तो ये हाँ दोनों एक ही टॉपिक का नाम है। ये दोनों एक ही टॉपिक का नाम है। कुछ टेक्स्ट में ये दोनों एक ही टॉपिक कंसिडर किए जा रहे हैं और कुछ में हाँ, सेकेंडरी को अलग गिन रहे हैं और एनहांस ऑयल रिकवरी को अलग सही गिन है, रहे हैं। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम में ये दोनों एक ही टॉपिक का नाम है कि ठीक है। मतलब एनहांस ऑयल रिकवरी या सेकेंडरी ऑयल रिकवरी एक ही चीज है। ठीक है, तो कुछ ठीक में है। इसमें प्राइमरी भी इंक्लूड है। अब मैं हाँ, समझ नहीं रहा कि प्राइमरी को इंक्लूड करना है क्या करना है। आप उसमें ये है ना कि ये चीज़ इंट्रोडक्शन जब आप लिखेंगे ना अपनी असाइनमेंट का, तो ये आप उसमें लिखें कि जो ऑथर्स ने इसको प्राइमरी को इंक्लूड किया, उनका नाम लिखें कि वो कंसीडर करते हैं कि प्राइमरी और रिकवरी ये है, सेकेंड सेकेंडरी ये है। तो जब भी आप कोई असाइनमेंट वगैरह बनाते हैं ना, तो आप दोनों तरफ की राय लिखते हैं, और फिर आप बताएं कि भाई मैं इस ऑथर को फॉलो कर रहा हूँ, और इसके मुताबिक मैं फर्दर जो एक्सप्लेनेशन है ना, वो मैं अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर ऑथर, बिकॉज आई अंडरस्टैंड हिम वेरी वेल। तो फिर उसके मुताबिक आप उसको आगे लेके चलते हैं। जैसे जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि आप सारी राय देखते हैं। ओके, दिस गाय लाइक मिस्टर एक्स, ही सेड देयर इज प्राइमरी टाइप, सेकेंडरी टाइप एंड टर्शियरी टाइप। ओके, यू जस्ट नेम दैट गाय, और उसकी बेस के ऊपर आप उसको एक्सप्लेन कर दें। फिर सेकंड की बात करें, थोड़ा सा उसको 2-3 लाइनों में एक्सप्लेन करके, फिर आप जो आपने फर्दर लिखना है ना, फिर आप उस बंदे का नाम लिखें, लाइक फॉर एग्जांपल मिस्टर वाई, ही सेड दैट based on his work he classified oil recovery into these 2 forms or 3 forms। तो इस तरह आप कर सकते हैं। आप सारी राय लिखें जो भी आप, इससे ये इंडिकेट होता है कि आपने मटेरियल पढ़ा है और आपको पता है कि और लोगों ने भी इस चीज़ पे काम किया। यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट?
ओके सर, ओके सर। हाँ, तो उसको आप सर अपने तरीके से करें। यही काम होता है, जो टर्म पेपर होता है उसको आपने खुद लेकर आगे चलना है। जी अरसलान। सर एक जो टाइटल पेज है, उस टाइटल पेज के ऊपर हम लिखेंगे क्या अपना नाम और रोल नंबर, उस टाइटल पेज पे लिखेंगे या उससे अलग? यस यस, आपका जो टाइटल पेज है उसके ऊपर आपका यूनिवर्सिटी का लोगो आएगा, आपकी यूनिवर्सिटी का नाम, डिपार्टमेंट का नाम, आपके इंस्ट्रक्टर का नाम, आपके सब्जेक्ट का नाम, अ, आपका नाम, आपका स्टूडेंट आईडी और असाइनमेंट का नाम, ये तमाम चीज़ें आएंगी उस पर। तो उसमें मैं ठीक है देखूंगा, अगर मुझे कोई फॉर्मेट मिल गया ना तो वो मैं आपको उसका इमेज भेज देता हूँ, तो आप उसको ही फॉलो करना। लाइक लोगो कहाँ पर आएगा और असाइनमेंट का नाम, यूनिवर्सिटी का नाम, एवरीथिंग। यस सर। और सर सर हम टेबल पाकिस्तान और से एग्जाम्पल, यस अरसलान। पाकिस्तान से कोई एग्जाम्पल सर मिल नहीं रही, कुछ आर्टिकल्स नजर नहीं आ रहे, कोई ओ आई आपकी नजर में आ फॉरगॉट, यस्टरडे सर? मैंने आपसे कहा था लेकिन यस मैं सर। बस दूसरे कामों में मसरूफ हो गया। तो आई विल सी, मैं भी क्लास के बाद अभी देखता हूँ। आपका कौन सा है? डीलिंग प्रॉब्लम्स। सर डीलिंग प्रॉब्लम्स। ओके, सर आई सी। इनहांस फाइल रिकवरी भी सर, पाकिस्तान से एग्जांपल तो इस तरह नहीं हो सकती। ये तो हर वेल में होता है, मतलब जिधर टार सैंड्स हैं वहां पे हो सकता है। तो अब पाकिस्तान से कैसे इसकी एग्जांपल कोट करेंगे? आजम, उसमें ये है कि कहीं पर सम टाइम सम पेट्रोलियम इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स दे डू केस स्टडीज। केस स्टडी में ये होता है कि आप किसी भी एग्जाम्पलरी वेल को लेकर आप बताते हैं कि कैसे इस वेल के अंदर इनहांस्ड ऑयल रिकवरी हुई, उसको आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, एज एन सर ओके एग्जाम्पल। सर। हाँ। सर कल इस पे लेक्चर ना कर लें एक? ओके, नो प्रॉब्लम, वी कैन डू ओके दैट, डिस्कस यस एंड सर। वी कैन डू दैट, नो प्रॉब्लम। सर कुछ अगर आपके पास डाटा हो तो वो भी शेयर कर दीजिएगा हाँ हाँ, स्क्रीन पे। मैं इसी के ऊपर देख रहा हूँ। मैंने एक्चुअली 2-3 लिंक्स देखे थे, तो वो मटेरियल उस वक्त डाउनलोड नहीं हो रहा था। आई विल ट्राई अगेन, अगर वो डाउनलोड हो जाता है तो मैं आपको पीडीएफ की फॉर्म में ग्रुप में सेंड कर दूंगा। यस यस सर। सर। नो सर अगर प्रॉब्लम। हम टेबल और ये पिक्चर इसमें डाल दें तो? सॉरी, कम अगेन आजम। टेबल या पिक्चर इसमें कोई डालना चाहें तो? किस किस तरह का टेबल? असाइनमेंट में मतलब कुछ टेबल्स होते हैं ना। हाँ हाँ हाँ, अच्छा, आप डाटा शेयर करना चाहते हैं। हाँ सही है, कोई मसला नहीं, लेकिन मैं प्रेफर करूंगा कहीं कि से आप उठा उसको के टाइप मतलब। करके डालें। अगर टेबल कोई है, डाटा है, तो आप उसको खुद टाइप करें, ठीक है इमेज सर, की ठीक है। फॉर्म में ना लगाएं। बात समझ रहे हैं मेरी? ओके सर, जी। मैं समझ गया सर। हाँ, ठीक है सर। थैंक यू। इससे एक चीज आप याद रखें, आपके अंदर एक चीज आ रही है और वो है रिसर्च। तो कल को अगर आप लोग रिसर्च करना चाहेंगे तो आपको पता होगा कि रिसर्च में कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है। लाइक अल्लाह करे, अगर कल को आप मास्टर्स या पीएचडी करते हैं तो आपको पता होगा कि मेन कंपोनेंट्स क्या होते हैं एक रिसर्च आर्टिकल के। फिगर्स होती हैं और टेबल्स होते हैं और कैसे ऑर्गेनाइज करना है। तो ये आप लोगों के लिए एक डेवलपिंग सी कहानी है और डेवलपिंग सी स्टोरी है। इसका सिर्फ आप ये ना देखें कि ये एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन आप अपने लर्निंग के लिए भी देखें कि इट इज़ आल्सो ए पार्ट ऑफ योर लर्निंग। सर एक टाइटल पेज बनाया था मैंने, लेकिन वो डिफरेंट तरह का था। मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट सर देख के बताइएगा। हाँ, स्क्रीन शेयर ओके कर सर। दें। सर नजर आ रहा है? अच्छा, तो आपने इसमें वो रिग है आई थिंक, और उसका वो टॉप कंपोनेंट है, टॉप ड्राइव। यस सर। ये जो ब्लैंक है, वाइट हाँ। वाइट, यहाँ पे नाम हो जाए और यूनिवर्सिटी का नेम वगैरह। उसमें ये है कि मैं वैसे प्रेफर ये करूंगा कि आप लोग ना यूनिफॉर्म रखें, एक ही स्टाइल रखें, जिसमें आप जो फ्रंट पेज है ना उसको बिल्कुल सिंपल रखें। यस सर। ठीक है ना, बिल्कुल ब्लैंक रखें। जहाँ पे ये जो एरिया है, अगर आप मेरा एरो नहीं देख सकते, लेकिन जो जहाँ पर ये दरमियान में है ऊपर, यहाँ पर लोग लग जाएगा। जहाँ पर ये रिग यस का आपको नजर आ रही है सर्वाइवल, इसके बाद नीचे आप लिख दें असाइनमेंट का नाम, उसके बाद यस इंस्ट्रक्टर सर। का नाम, उसके बाद अपना नाम और अपना आईडी, फिर उसके बाद डिपार्टमेंट, और एंड पे यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा यहाँ पर लिख दें बस। ईयर यस और मंथ और ईयर भी लिख दें, लाइक अप्रैल 2020। ठीक सर। सही है। तो ये यस सर। मेरे आइडिया के मुताबिक ये है। बहरहाल ये एक अच्छा आइडिया है, लेकिन क्योंकि ये थोड़ा आप समझ लें कि ये आपका एग्जाम है, यस सर। तो जस्ट ट्राई टू कीप इट सिंपल। ठीक सर।
तो ये आइडिया है मेरा। और बाकी जो है वो फिर कल हम कोशिश करेंगे थोड़ा एग्जाम्पल्स जो है ना इसकी उसको थोड़ा डिस्कस कर लें, ठीक है? ओके सर। Okay, till then, take care of yourself and your family, and we see each other tomorrow, inshallah. Okay, sir. Allah Hafiz. Just a second, just a second. Okay, just let me take a screenshot.